Introduction to Microeconomics, Chapter 1 of your Book 2, that is Microeconomics. In this chapter, we will study about what do you mean by economics, what is economic problem, what is scarcity, how many types of economics are there, what is economic planning, etc. So let's start this chapter. Introduction to Microeconomics. What do you mean by economy? Economy is a system which provides people the means to work and earn a living. The two things you have to keep in mind. इकॉनमी एक सिस्टम है जिसमें लोगों को काम मिलता है और उस काम से वो क्या करते हैं, अपनी अर्न करते हैं लिविंग को. तो इट इज़ अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. ओके. Parts of economy. How many parts of economy are there? Let's see. Generally in economy, major few activities are undertaken. Those activities are production, consumption and capital formation. These are the vital functions of the economy and can be termed as parts of economy also. Okay. So what does these means? A system in which people get a living to satisfy their wants through the process of production, consumption. ये तीन major functions होते हैं. इसके apart we can have exchange also. ठीक है. Production किया और वो हम सारा consumption खुद तो नहीं करते. Part of production अपने consumption के लिए रखते हैं and rest we sell in the market. तो it results in your exchange. You are giving goods and services and you are taking money like that. Exchange. There is a two-way exchange. So all these four are the vital functions of an economy. What are those functions? First is your production. Production means creation of utility. When you are adding something in any particular good and services and making it more useful, this process is known as production. Okay. Consumption. Consumption is a process by which using of goods and services for satisfaction of वॉन्ट्स. हमें भूख लगी है, वॉन्ट हमारी हंगर है, उसके लिए हमने फूड कुक किया और खाया, दैट इज़ कंजम्पशन. हमें गर्मी लग रही है तो हमने एसी परचेज़ किया और उसको हमने यूज़ किया. कंजम्पशन का मतलब सिर्फ ईट करना नहीं होता है. कंजम्पशन का मतलब है यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई वन वांट. अब आप क्लॉथ को खाते नहीं हो, लेकिन क्लॉथ आप पहनते हो ताकि आप अपनी बॉडी को कवर कर सको और अदर डिफरेंट क्लाइमेट्स में अपने स्किन को सेव कर सको, राइट. बट यू आर नॉट हैविंग ईटिंग द क्लॉथ. दैट इज़ नॉट कंजम्पशन. कंजम्पशन मीन्स व्हाट? यूजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स. ओके. नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट. पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ कमिटेड फॉर अर्निंग फ्यूचर इनकम इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट. वो प्रोडक्शन जो हमने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख दिया, ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो बचा है, जो हम सेल करके इनकम जनरेट करेंगे, दैट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट. सम काइंड ऑफ उस इनकम में से कुछ तो हम परचेजिंग में खर्च करेंगे. इनकम अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ, इनकम इज़ व्हाट जनरली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी डिनोट इनकम फ्रॉम वाई. तो इनकम इज़ ईदर कंज्यूम्ड और सेव्ड. The part of income which is saved or invested somewhere, it is known as invested. The part of income which is not spent on expenditure is saving or investment. तो मैंने दो चीज़ बताई. Part of income which is not consumed is saving. The part of income which is saved in some other institution is investment. तो ये हो गया जो आपने खर्च नहीं किए पैसे और आपने उनको बचा के रख लिया for future uncertainties या future needs, that is known as investment. Exchange I told you कि it is a process by which ownership of goods and services is transferred from seller to seller for consideration. एक बायर है, एक सेलर है, ठीक है. तो बायर को क्या चाहिए? गुड्स चाहिए एंड सर्विसेज चाहिए. और सेलर इनको क्यों बेचेगा? ताकि उसको प्राइस मिले, मनी मिले. तो एक्सचेंज जो होता है इकोनॉमी में वो टू वे होता है. कुछ आपने दिया और बदले में आपको कुछ मिला, कुछ आपने लिया और बदले में आपको कुछ दिया. तो वन यू आर ऑन वन हैंड यू आर गेटिंग समथिंग, ऑन द अदर हैंड यू आर पेइंग समथिंग. दैट्स अ थिंग. तो 4 वाइटल फंक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी इज व्हाट? प्रोडक्शन, आपका कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज. ओके. नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द पॉइंट स्कार्सिटी. स्कार्सिटी मीन्स अगर मैं बोलूँ शॉर्टेज होता है.
स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है, शॉर्टेज होता है। ओके, इट इज़ रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। स्कार्स तब होता है तो सबको लैंड चाहिए, लैंड आपको हाउस के लिए भी चाहिए, आपको हॉस्पिटल के लिए भी चाहिए, पार्क के लिए भी चाहिए, और आपको रोड्स के भी बनाने हैं, आपको डैम्स भी बनाने हैं, मॉल्स भी बनाने हैं, एयरपोर्ट भी बनाने हैं। बट हमारा जो लैंड का पीस है वो लिमिटेड है, अब उसी पे सब कुछ करना है। ओके, दैट इज स्कार्सिटी। शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिलेशन टू देयर डिमांड, उनकी जो डिमांड है, कंजम्पशन की जो नीड आ रही है उससे वो कम पड़ जा रही है उनकी सप्लाई, दैट इज़ नोन एज स्कार्सिटी। तो इकोनॉमिक्स में क्या हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स इज बेसिकली कंसर्न्ड विद दिस ओनली कि हाउ द लिमिटेड रिसोर्सेज आर यूज्ड वाइजली और सेंसिबली to meet more and more human wants. That is only economics. Okay, now what is economic problem? Economic problem is generally a problem of choice. It is a problem of choice. Why? So economic problem is a problem of choice. Why? Because of the three reasons. What are those three reasons? Your human wants are unlimited, resources are limited, and those limited resources have alternative uses. For example, if I take an example of land, so land can be used for your school, land can be used for making roads, land can be used for agriculture purpose, land can be used for making malls, land can be used for hospitals, and so on. So single resource have many uses. Can you see this? Single resources have alternative uses. That is the reason कि we have to make a choice. We have to make a choice. Economic problem को solve करना मतलब it is a problem of making choice. And what does this choice mean? What is the choice regarding? To satisfy more and more human wants using limited resources. It is a problem of making choice to satisfy more and more human wants using limited resources which have alternative uses. A big problem for a country, isn't it? Now, already we have discussed this. Economic problem means a problem of choice. ये economic problem क्यों arise? ये 1 mark question आता है. Why do economic problem arise? Because it is a problem of choice. Reason, ह्यूमन वांट्स हमारे अनलिमिटेड है, हमको हाउस भी चाहिए, हमको रोड भी चाहिए, हमको रेलवेज़ भी चाहिए, हमको स्कूल भी चाहिए, एजुकेशन भी चाहिए, डैम्स भी चाहिए, मॉल्स भी चाहिए, पिक्चर हॉल्स भी चाहिए और पार्क्स भी चाहिए। बट हमारा जो रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल लैंड लिमिटेड है, वो तो आप बढ़ा नहीं सकते। उसी लैंड पे आपको सेंसिबली उसको यूज़ करना पड़ेगा कि आपके मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो। प्लस इनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी, आई टोल्ड लैंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग मॉल्स, फॉर मेकिंग रोड्स, फॉर मेकिंग एग्रीकल्चर पर्पज, फॉर स्कूल्स, फॉर एक्सेट्रा, मैनी थिंग्स कैन बी डन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड सो ऑन। तो ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड, यही प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही को बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब इसकी वजह से 3 बेसिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, पहला क्वेश्चन आता है हमारा क्या, व्हाट, ये हमारे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी हो जाते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। सी, व्हाट, हाउ एंड फॉर whom। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है, ये तो 3 मेन हमारे होते हैं। इसके अलावा देयर शुड बी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो। हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब ये लिमिटेड लैंड है, अब उस लैंड से हम क्या बनाएं, हाउस बनाएं कि हम हॉस्पिटल्स बनाएं कि हम रोड्स बनाएं। तो कीपिंग इन माइंड द डिमांड ऑफ दैट एरिया हम डिसाइड, अगर ऑलरेडी हॉस्पिटल है तो हम दूसरा हॉस्पिटल बनाने की बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। हम क्या बनाएंगे, अगर स्कूल नहीं है उस एरिया में तो हम स्कूल बनाएंगे। दैट इज़ अ थिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन द अर्जेंट नीड हम उस लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। लग्जरी गुड्स बनाएं कि इन्फीरियर गुड्स बनाएं, कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करें, कौन सा गुड प्रोड्यूस करें, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस। हाउ आर दीज क्वांटिटी गुड्स प्रोड्यूस,
हाउ टू प्रोड्यूस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें चॉइस ऑफ टेक्निक क्या हो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक होती है, एक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है कि अगर मेरे पास कैपिटल कम है और मशीन से अफोर्ड नहीं कर सकते और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो हमको लेबर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और मशीन्स कम यूज़ करने चाहिए। इससे दो फ़ायदे होंगे, मशीन्स कॉस्टली आती हैं, हमारा कैपिटल कम लगेगा, और दूसरा फ़ायदा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे। ठीक है, तो जनरली लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स आर यूज्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ इन डेवलप्ड इकोनॉमी देयर इज़ अ नो इशू ऑफ कैपिटल एंड देयर इज़ अ मास एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता है। तो देयर वी कैन गो फॉर व्हाट, फॉर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या है कि ज़्यादा कैपिटल यूज़ हो और लेबर कम यूज़ हो। कैपिटल ज़्यादा कैसे यूज़ होगा, हम मशीन से ज़्यादा यूज़ करेंगे और लेबर को कम यूज़ करेंगे। दैट इज़ generally used by developed economies like America, China, etc. Okay. Growth of resources, growth of resources, our resources are limited, तो उनको हम बढ़ाएं कैसे, लैंड को कैसे बढ़ाएं। लैंड को हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि उस जो लैंड अनयूज्ड पड़ा है वो उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करके उसको एग्रीकल्चर के लिए ले लें, या फिर जो लैंड हमारा पार्क में यूज़ हो रहा है और 2-3 पार्क एक साथ हैं तो दूसरे पार्क में हम फैक्ट्री बिल्डअप कर दें। तो लाइक दिस वी कैन इंक्रीज आर resource growth. Okay, what do you mean by economizing of resources? Economizing of resources का means है using limited resources such that कि maximum wants are satisfied, making optimum मतलब maximum use of available resources. Okay, making maximum use of available resources is economizing of resources. अब ये सब तो हमने पढ़ लिया इकोनॉमी के टर्म्स को। अब इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स इज़ व्हाट, इट इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं, उनके सेंट्रल प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है पढ़ते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर को फॉलो करना है इकोनॉमी के वो पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी, इट इज़ अ सब्जेक्ट और अ स्टडी इन विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या अराइज हो रही हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है, ऑल दिस हैव इज स्टडीड। ठीक, ये होता है इकोनॉमिक्स। इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर इन विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड एंड सॉल्यूशंस आर टेकन, एंड इट ऑल्सो फोकसेस ऑन रैशनल मैनेजमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। सब्जेक्ट है जिसमें इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इकोनॉमिक्स 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, ब्रॉडली 2 अप्रोचेस हैं इकोनॉमिक्स को लेके। एक है हमारी पॉजिटिव अप्रोच, दूसरी है नॉर्मेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच का मतलब है इट इज़ फैक्ट बेस्ड कि जो एक्चुअल सिचुएशन इकोनॉमी की है वो उसकी बात करती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव जो होती है वो वैल्यू बेस्ड, ये होना चाहिए था, ठीक है, ये होना चाहिए, दिस ऑट टू बी डन, दैट इज़ आइडियल सिचुएशन। नॉर्मेटिव क्या होती है, आइडियल होती है, ऐसा होना चाहिए। और पॉजिटिव क्या होती है, एक्चुअल सिचुएशन, रियल सिचुएशन, कि ये होगा, ये होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट डू नॉट हैव टू बी करेक्टेड। वो जो सिचुएशन है, हमारे पास लैंड कम है तो हम आइडियली बोलें कि अरे हर एरिया में एक स्कूल होना चाहिए, एक हॉस्पिटल होना चाहिए, एक पार्क होना चाहिए और प्रॉपर रोड होनी चाहिए। लेकिन अगर वहाँ पे लैंड लिमिटेड है तो आइडियली तो आपने बोल दिया हर चीज़ होनी चाहिए, लेकिन अगर लैंड ही नहीं है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, पहले रोड्स बनाएं, फिर स्कूल के बारे में सोचें, फिर हॉस्पिटल के बारे में सोचें। तो ये रियल सिचुएशन को डील करती है और ये आइडियल सिचुएशन को डील करती है। गॉट इट? That's the thing. Positive and normative. Positive and normative, what I said, we should cut taxes in half. ये बोल रहे हैं कि डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ानी है तो हमको टैक्सेस कम कर देने चाहिए। और ये बोलती है नॉर्मेटिव, जो कि आइडियल सिचुएशन होती है कि ये ही सही है, ये गलत है, ये सही है। टैक्स कट वुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। टैक्स अगर हम कम रेट्स कम टैक्स कम लगाते हैं तो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव होगी। ओके, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या बोलती है, रियल इकोनॉमिक्स होती है एज दे आर, इट डील्स विद द सिचुएशन एज दे आर, इट इज़ बेस्ड अपॉन रियल फैक्ट्स। ये आइडियल सिचुएशंस पे होती है, ये ओपिनियंस पे डिपेंड करती है। इट इज़ वेरीफाइड, ये एक्चुअल डेटा है ना, सिचुएशन जो चल रही है उसकी, इट कैन नॉट बी वेरीफाइड क्योंकि ये आइडियल है, ऐसा होना चाहिए,
ठीक है। घर हो तो 2 मंजिल हो, घर हो तो सोफ़ा हो तो ऐसा हो, ठीक है, फ्रिज हो तो इतना बड़ा हो, और आप अपनी इनकम नहीं देख रहे कि आपको कितनी इनकम में सब कुछ मैनेज करना है। दैट इज़ द थिंग। तो ये एक्चुअल सिचुएशन पॉजिटिव, और ये आइडियल सिचुएशन। पर नेचर ये प्योर और न्यूट्रल होती है, ठीक है, इसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, बट ये ओपिनियन बेस्ड है ना, तो सजेस्टिव है। तो जहाँ सजेशंस लोगों के लोगे, ओपिनियंस लोगे, तो ये आइडियल हो जाती है, ये अनरियल रह जाती है। पर्पस, रियल डिस्क्रिप्शन, ये सही सही सिचुएशन जो चल रही है उसके बारे में बताती है, और ये आइडियल्स की बात करती है कि ये होना चाहिए, अभी ये है, बट 2 रूम में आप रह रहे हो, लेकिन हर घर मेंबर के हिसाब से हर रूम में एक बंदे को रहना चाहिए। वैल्यू जजमेंट्स, ये आइडियल नहीं है तो वैल्यू जजमेंट्स नहीं है, नॉर्मेटिव में वैल्यू जजमेंट्स होते हैं। ओके, तो मैंने एक शब्द में समझ लो, जो एक्चुअल सिचुएशंस को डील करती है वो क्या होती है, आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और जो आइडियल को डील करती है वो होती है नॉर्मेटिव। नाउ वी आर कमिंग ऑन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 2 ब्रांचेज हैं इकोनॉमिक्स की, वन इज़ माइक्रो, अदर इज़ मैक्रो। माइक्रो का मतलब है जब आप इंडिविजुअल यूनिट को पढ़ते हो तो माइक्रो लेवल होती है। जब आप इंडिविजुअल्स को ना पढ़ के एक ग्रुप को, एग्रीगेट्स को स्टडी करते हो तो वो मैक्रो हो जाते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, अब इनमें डिफरेंस क्या है मैंने पहले बता दिया, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो, अभी वर्ड देखो, ठीक है, माइक्रो, आई आया, आई का मतलब है दे आर डीलिंग विद इंडिविजुअल यूनिट्स। मैक्रो, यहीं पे देख लेते हैं, मैक्रो, ए आया, ए मतलब कि ये इट डील्स विद एग्रीगेट्स, ये ग्रुप की बात कर रहा है, जबकि माइक्रो में आप एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो। जैसे हम अगर बात करें कि लखनऊ की, तो लखनऊ एक इंडिविजुअल यूनिट हो गई, और यूपी की बात करें तो ये एक मैक्रो लेवल हो गया, ठीक है। अब इंडिया के कंसर्न में बात करो तो यूपी एक स्टेट है, तो इंडिविजुअल माइक्रो यूनिट हो गई, और जब सारे स्टेट्स को पढ़ेंगे, ग्रुप में पढ़ेंगे, तो वो मैक्रो लेवल की कॉन्सेप्ट हो जाएगी। दैट इज़ माइक्रो एंड मैक्रो। ओके, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद इंडिविजुअल यूनिट्स। मैंने बोला एक एक आइटम को पढ़ोगे तो आपकी माइक्रो है, जब एक ग्रुप को पढ़ोगे, इकोनॉमी एज अ होल को पढ़ोगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। इसके जो टूल्स यूज़ होते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई होता है, डिमांड ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप को पढ़ रहे हैं, तो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एंड एग्रीगेट सप्लाई, यानी टोटल डिमांड एंड टोटल सप्लाई को पढ़ते हैं ये सेक्टर्स में। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है इनको प्रॉब्लम्स डील करनी होती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, गुड्स के प्राइस फिक्स करने में हेल्प करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। कितनी डिमांड है प्राइस की और कितनी सप्लाई है, जहाँ पे दोनों सप्लाई एंड प्राइस डिमांड इक्वल हुए वहाँ प्राइस फिक्स हो जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करती है कंट्री में एम्प्लॉयमेंट लेवल, इनकम लेवल को डिटरमाइन करने में। अदर नेम, क्योंकि प्राइस फिक्स करने में हेल्प करती है गुड्स के, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइस थ्योरी। इट इज़, क्योंकि ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट को डील करती है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल्स क्या हैं, इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट। कोई भी इंडिविजुअल इनकम है, इंडिविजुअल आउटपुट है, इनके एग्जाम्पल क्या हैं, ये इंडिविजुअल इनकम था, ये नेशनल इनकम है, पूरी कंट्री की टोटल इनकम की बात कर रहे हैं। और ये इंडिविजुअल आउटपुट है, यहाँ पे हम जीडीपी की बात करेंगे, टोटल आउटपुट इन द कंट्री की बात करेंगे। एग्रीगेशन, यहाँ पे एग्रीगेशन नहीं होता है, इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टडी करते हैं तो लिमिटेड है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रुप को, पूरे ग्रुप को उठा के पढ़ते हैं, सम को पढ़ते हैं, टोटल को पढ़ते हैं, ठीक है।